we are going to start chapter number 3 in your book, Chemical Kinetics. So we have already completed 2 chapters and we are starting the third one. Before starting this chapter, I must tell you that solutions the तरह, it is also a numerical based chapter. Bulk of the chapter is made up of from numericals, but it is very easy and छोटा सा chapter है बच्चे, ठीक है ना? So we'll just finish it off. ਆਪਾਂ वही pattern follow करांगे. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ solutions ਕੀਤਾ ਸੀ numerical based, then we did surface chemistry which was totally theoretical. ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ numerical based chapter ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Then we'll jump on to chapter number 5 in your book, which is again total theory, ठीक है ना? So we'll strike a balance between numericals and theory ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ overburden ਨਾ feel ਹੋਵੇ. And side by side, I would just like to tell you कि ਆਪਾਂ book ਦੇ questions भी ਨਾਲ cover ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं. That is mostly done during the revision time, but ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ we have plenty of time now, so we can cover it side by side. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ NCERT questions cover ਕਰ ਲਏ ਹੈ and ਜੋ ਤੁਸੀਂ last ਮਤਲਬ what you did yesterday, that is the latest board pattern ਦੇ questions ਜੋ last year ही start ਹੋਏ ਹੈ. So what I want is कि अपन starting तो ही we must make a habit of doing that. उस part चों जेडे विच MCQ सी that was left क्योंकि अपन MCQs during the chapter ही अपन plenty practice कर चुके हैं. From next lecture onwards, I'll start giving you questions from surface chemistry. So this is the pattern we'll follow कि जिਵੇਂ जिਵੇਂ अपना एक chapter ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, we'll start covering the NCERT as well as textbook questions. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ NCERT ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰਮ ਬੋਰਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ. ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ ਇਨ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਯੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ. ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਮੀ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਉਸਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਬਟ ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਲ ਆਪਾਂ MCQs ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ NEET ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ JEE ਮੇਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View. ਜੋ MCQs ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਥਿਉਰੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3, that is chemical kinetics. So ਬੱਚੇ just to introduce what do you mean by kinetics? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ it is the branch of science या chemistry which deals with the rates of chemical reactions, speed of chemical reaction, है ना? कितनी speed ਨਾਲ reaction ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ basically ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ chemistry ਦੀ form ਚ ਕਿੰਨੀ speed ਨਾਲ reactants are getting converted into products, ठीक है ना? Like for example, अपने को अगर एक reaction है कि R gives you P. So बच्चे let it be कि our reaction is R gives you P. मतलब reactants they give you products. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ rate of a reaction ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Rate of a reaction is defined as the speed with which the reactants get converted into products. मतलब कितनी स्पीड ਨਾਲ reactants ਤੋਂ products ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ rate of a chemical reaction. ਤੇ ਉਸ rate ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿੱਦਾਂ? ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ with
टाइम यानी कि टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड रेट। सो अगर अपन स्पेसिफिकली लिखना है कि रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, फिर अपन लिखांगे रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम यानी कि अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कि किन्ने समय दे विच रिएक्टेंट दी कॉन्सेंट्रेशन कितनी घट गई या प्रोडक्ट दी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। एंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि जिवें जिवें रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी रिएक्टेंट दी कॉन्सेंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, so decreasing, and product the concentration will go on increasing, so it will increase. So this is called rate of a reaction. ठीक है ना। now ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ मैथमेटिकली किद्दां रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली it is represented as delta concentration of reactants upon delta time। ठीक है, delta stands for change, है ना, change in the concentration of reactants upon time taken। It is also written as delta concentration of products upon delta T। ठीक है, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ प्रोडक्ट्स ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, which shows this minus sign shows कि the concentration of reactants decreases with time while the concentration of products increases with time। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ, otherwise the magnitude will remain the same, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ reactants are getting converted into products। तो जितने रिएक्टेंट्स घट रहे हैं प्रोडक्ट्स उन्ने ही वध रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी द सेम। देखो कितना, सो लेट इट बी कि स्टार्टिंग दे विच रिएक्टेंट्स, चलो अपन नीचे लिख लेंगे। सो इनिशियली लेट इट बी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 100 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स स्टार्टिंग दे विच 0 है। Now after 10 seconds, let it be 10 सेकंड बाद ये अपने कोल बच गए बच्चे, let it be 70 and ये बन गए 30। ठीक है, now हुन मैं रेट नू किवें लिखूंगा? रेट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T या फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, आपको माइनस प्लस वाले कुछ भी नहीं लगाया। नाउ डेल्टा R की है R2 माइनस R1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1, और एक ही है बच्चे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, सो इनमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं 70 माइनस 100 अपॉन 10 माइनस 0, और इथे आएगा बच्चे 30 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। ठीक है, सो देखो 70 माइनस 100 कितना आया? माइनस 30, माइनस 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस 3, और इथे कितना आएगा? 30 माइनस 0 30 अपॉन 10 कितना आएगा? प्लस 3। सो रेट दोनों दे केस च बराबर ही आएगा, बट रिएक्टेंट्स दे केस च वो नेगेटिव आएगा, विच शोज कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। प्रोडक्ट्स दे केस च वो पॉजिटिव आएगा, विच शोज कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सो अगेन आई रिपीट कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड रेट्स की होंगे ने बच्चे द स्पीड विद विच अ रिएक्शन अकर्स, यानी कि द स्पीड विद विच द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। उसको आप दो तरीके नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण बच्चे अगर एक तो ज्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होन तो फिर आप की करते हैं। सो आप अलग अलग केसेस कर रहे हैं, तुसी नाल नाल अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहियो। सो देखो, सो एक रिएक्शन दे विच अगर एक तो ज्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होन, सो लेट इट बी कि वी हैव A plus B gives you C plus D. Fine. So this is our reaction now. हुण suppose हुण बच्चे ना चारा ਲਈ ਆਪਾਂ अलग-अलग rates ਦੀਆਂ terms लिखांगे। So देखो, rate can be written as decrease in the concentration of A with respect to time. It can also be written as decrease in the concentration of B with respect to time. It can also be written as increase in the concentration of C with respect to time. And it can also be written as increase in the concentration of D with respect to time. ठीक है बच्चे? So ये सारे अपने को रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दियां फॉर्म्स बन गया इस दे लिए। ठीक है, ए ते बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किन्ने डिक्रीज हो रहे हैं, सी ते डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किन्ना इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज योर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फाइन। नाउ अगला केस, हुण बच्चे अगर इन्हां दे अगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे होण, है ना, मतलब ऐदा हो गया अगर, now let it be 2A plus B gives you C plus 3D. So अगर हम अपने को stoichiometric coefficients लगे हैं 2A plus B gives you C plus 3D. ठीक है। now हमने इसके लिए रेट्स लिखना है, तो बच्चे याद रखना है सब कुछ बाकी सेम आएगा, सिर्फ आप जी रेट की टर्म है उसनु stoichiometric coefficient दे नाल डिवाइड कर देंगे। सो देखो, सो रेट विद रिस्पेक्ट टू ए की होएगा -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सो बी का कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, दैट इज 1, सो 1, सी 1, डी का आगे 3 है बच्चे, सो दिस विल बी प्लस 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। आप इसनु एग्जाम्पल लेके प्रूव भी करांगे कि ऐदा बिल्कुल सही अपना रेट with respect to all the reactants and products will come out to be the same। उस तो पहला मैं सुनो एक दो रिएक्शंस दिए एग्जांपल्स लेके आप उन्हां दा रेट लिखने हैं। सो देखो, फॉर एग्जांपल वी हैव, सो पर टिपिकल रिएक्शंस लेके चलेंगे जेडी आपने सिलेबस च है। फॉर एग्जांपल वी हैव N2 plus 3H2 gives you 2 moles of ammonia। Another reaction, let it be we have 2NO2 gives you N2O4। सो दो रिएक्शंस दे अपने रेट्स दियां टर्म्स लिखनी है। सो देखो, ऊपर वाली रिएक्शन नो अपन रेट नो किवें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आगे माइनस लगाता बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट। हाँ जी, हाइड्रोजन के 3 मोल्स है, so -1/3 delta H2 upon delta T। एमोनिया के अगे 2 लग्या हुआ बच्चे, सो प्लस 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया अपॉन डेल्टा T। So these are the different ways in which the rate of this chemical reaction can be expressed। Now इसका रेट आप किवें लिख सकते हैं बच्चे, रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डेल्टा T। सो बच्चे this is how to write the expression for the rate of a chemical reaction। ठीक है, ਹੁਣ मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूव करना है। देखो, ਜਦੋਂ कोई भी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ एग्जाम्पलीफाई करना है ना, किसी भी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ समझना है,
ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਟੋਇਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ। एग्जांपल लेके चलो, व्हेन यू विल टेक द एग्जांपल आंसर विल कम, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यस मैंने चैप्टर या मैंने टॉपिक समझ आ गया। देखो कितना, सो तुसी कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो लेट इट बी, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं बच्चे वैसे ही कि 2a plus b gives you 3c. Let it be initially, मेरे को इसमें भी 100 मोल्स है, इसमें भी 100 मोल्स है और इसमें ऑफ कोर्स 0। आफ्टर 10 सेकेंड्स लेट इट बी बी दे 40 मोल्स रिएक्ट कर गए। सो बच्चे अगर 40 मोल्स इसदे रिएक्ट कर गए तो अपने को कितने मोल्स बच जाएंगे, 60। सो इसदे 60 मोल्स बच गए। हुण अगर बी दे 40 रिएक्ट कर रहे हैं तो ए दे कितने रिएक्ट करेंगे, डबल, क्योंकि एक मोल नाल 2 रिएक्ट करते हैं तो 40 नाल कितने रिएक्ट करेंगे बच्चे। स्टोइकियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स जिद्दां आपां +1 च करदे सी केमिकल इक्विलिब्रियम च कि स्टोइकियोमेट्री तो बिना क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो स्टोइकियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो देखो ना, इसदे एक मोल नाल इसदे 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसदे 40 रिएक्ट करके 40 नाल कितने रिएक्ट करेंगे, 80। सो 100 चो अगर 80 रिएक्ट कर गए तो कितने मोल्स बच गए बच्चे, 20। गॉट इट। नाउ एक मोल तो देखो आंसर सही आएगा, एक मोल तो इसदे कितने बन रहे ने, 10। तो 40 रिएक्ट कितने, 40 तो कितने बनेंगे, 120। 40 into 3, चाहे ये हिसाब नाल कर लो। देखो 2 मोल्स तो कितने बन रहे हैं, 10। सो 2 तो कितने बन रहे हैं, 3। ये कितने रिएक्ट करके 80, 80 तो कितने बनेंगे, 3/2 into 80। सो 2 नाल कट के 40, 43 are 120। सो 3 आउगा आंसर, ठीक है ना। सो इसदे 120 मोल्स बन गए। हुण बच्चे आप अपना रेट चेक करते हैं। सो रेट इज इक्वल टू -1/2 ddt of A, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टाइम। सो इधर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, सो माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 10। सो 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। फाइन, आपको इतने माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। सो ये आप रिमूव करता। हुण देखो बच्चे, सो डेल्टा ए कितना चेंज होया, 20 माइनस 100 80 अपॉन टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड्स इंटू 1/2। नाउ ए कितना चेंज होया, 60 माइनस 100 60 माइनस 100 यानी कि 40, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी कितना लग गया, 10 सेकेंड्स। दोनों के आगे माइनस आऊगा क्योंकि 20 माइनस 100 माइनस 80, 60 माइनस 100 माइनस 40 इधर। सो 1/3 डेल्टा सी 120 माइनस 0, सो 120 अपॉन टाइम कितना लग गया, 10। उन्हें सारा नु सॉल्व करो बच्चे, आंसर सेम आएगा। सो देखो 80/10 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बच्चे, -4, माइनस 40/10 -4, 120/10 कितना आया बच्चे, 12, 12 डिवाइड बाय 3 4। सो -4 प्लस 4 डन। सो बस रिएक्टेंट्स दे विच माइनस आ गया यानी कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट्स दे विच माइनस आ गया यानी कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। सो इजी। सो कोई भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगे लगे है तो जिहड़ा अपना रेट एक्सप्रेशन है उसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे नाल डिवाइड कर देंगे। डन बच्चे। नाउ वी शैल डू द नेक्स्ट जो सेम लगभग सेम टॉपिक है, बस जस्ट अपने थोड़ा सा चेंज करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब की हुंदा बच्चे, द रेट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो बच्चे किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट ते एक पर्टिकुलर टाइम ते रिएक्शन का रेट कितना है
दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। देखो हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट इट बी कि तुसी अपने घर तो चल के यू आर कमिंग एट द इंस्टीट्यूट, है ना, एंड लेट इट बी योर होम इज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आप मान लिया, है ना। चलो 10 की बजाय 30 किलोमीटर्स मान लो, लेट इट बी जेड़ा थोड़ा घर है दैट इज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आप वैसे ही मान लिया, है ना। एंड सोनू इंस्टीट्यूट ते आंच लेट इट बी टाइम लग गया फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर। सो थोड़ी स्पीड कितनी हुई बच्चे, है ना, थोड़ी स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर्स पर आवर। 30 किलोमीटर्स ते सीगा, हाफ एन आवर सोनू लग गया, यानी कि थोड़ी पर आवर स्पीड कितनी हुई 60 किलोमीटर्स पर आवर। हुण बच्चे जो 60 किलोमीटर्स पर आवर है तो तुसी ये नहीं ना कह सकते कि थोड़ी बाइक या कार या किसी भी व्हीकल ते जिस ते तुसी आ रहे हो बाय बस ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਜੋ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 70 80 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 30 40 ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जो थ्रू आउट द जर्नी थोड़ी स्पीड सीगी दैट वाज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, है ना, दैट वाज द एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी। बट पर्टिकुलर मोमेंट्स ते जिहड़ी स्पीड सी वो तो लगातार चेंज हो रही सी, कदे घट रही सी कदे, हाँ नो डाउट रिएक्शन दे केस च ये कदे नहीं होएगा कि कदे घटेगी कदे बढ़ेगी, बट यस इट विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना। तो इसे तरीके नाल कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट ते स्पीड ऑफ द रिएक्शन कितनी है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। जिहड़ी आपां हुणे पढ़ी है दैट वाज फॉर द होल रिएक्शन कि 10 सेकंड, जिवें अपने एग्जांपल 10 सेकंड मन्ने तो 10 सेकंड के दौरान कितनी सी पूरी स्पीड, है ना, दैट वाज एवरेज स्पीड। उसको आपां कहने हैं एवरेज स्पीड ऑफ द रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर मोमेंट ते कितनी स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। सिर्फ डेफिनेशन च ही फर्क है बच्चे, जो एक्सप्रेशन है वो लगभग सेम होंगे, बस थोड़ा जा आप चेंज कर दें हैं। किदा देखो, सो लेट इट बी योर रिएक्शन इज A प्लस B गिव्स यू C, तो इसका रेट आप किवें लिखांगे किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे माइनस DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A या फिर माइनस DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B या फिर प्लस DDT of concentration of C. So DDT stands for infinitesimally small period of time, DT जो होता है जिद्दां आपां डिफरेंशिएशन च पढ़दे हुंदे आ, है ना। सो बस डेल्टा कदों यूज करदे आपां पूरी जर्नी दे दौरान, DT यूज करदे हैं, D यूज करदे हैं छोटे जे टाइम पीरियड लई दौरान, ना, छोटे जे टाइम पीरियड लई फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ बाकी सब कुछ सेम। सो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे हैं 2A प्लस B गिव्स यू 3C, तो माइनस 1/2 DDT ऑफ A माइनस DDT ऑफ B प्लस 1/3 DDT ऑफ C, एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। जेड़ा रेट ऑफ द रिएक्शन है ना बच्चे वो नॉर्मली विद टाइम डिक्रीज करता जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन रिएक्टेंट्स यूज होंदे रहंदे ने। लाइक एक क्लासिकल एग्जांपल तुसी मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल आपां वुडन लॉग्स का एक बंडल बना लिए, ढेरी बना लिए वुडन लॉग्स की, आपां उसनू बर्न कर लिए, अग लगा लिए, है ना। सो देखो स्टार्टिंग दे विच बहुत जोश नाल मचूगा, है ना, मतलब उसके पास बैठना भी मुश्किल हो जू, बट हौली हौली जिहड़ी वो अग हुंदी है वो घटदी जाएगी क्योंकि अपने कोल वुड जिहड़ी है वो बर्न हो चुकी है। हौली हौली डिक्रीज होती जाएगी एंड अल्टीमेटली कदे ना कदे जाके वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो देखो लगातार डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रेट है वो सेम नहीं होएगा। सो पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है, तुसी की लिख दोगे एवरेज रेट, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ਲਈ भी यूज करांगे इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट ਲਈ बस आप इत्थे डेल्टा यूज करते हैं एंड इंस्टेंटेनियस ਲਈ आप इत्थे की यूज कर लेंगे बच्चे डी, स्मॉल डी, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है ना जी। सो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਰੇਟ ਆਫ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ दैट we'll do कि what are the factors upon which the rate of a chemical reaction depends. So बच्चे these are the various factors जिन्हां दे ऊपर एक rate of a chemical reaction depend करदा है, ठीक है ना। मतलब there is not a single factor जिस दे ऊपर अपन rate of a chemical reaction नू कहने हैं कि it depends. So there are many factors. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ first and foremost देखो concentration of reactants. पहले मैं सुनो बिल्कुल एक सिंपल जी एग्जांपल देना है एंड देन वील मूव ऑन टू द जो एक्चुअल साइंटिफिक फॉर्म है। सो देखो लेट इट बी कि मेरे को आ एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। लेट इट बी मैं इसनू माचिस नाल जला रहे हैं एंड वंस इट बर्न्स, सपोज एक 2 मिनट्स दे विच बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। हुण मैं इदां दे लेट इट बी कि 10 वुडन ब्लॉक्स ले लेना। सो आप 10 वुडन ब्लॉक्स सेम साइज दे वील टेक। सो वी हैव टेकन अ बंडल ऑफ 10 वुडन ब्लॉक्स। हुण मैं इन्हां नूं एक नूं बर्न करता। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि 2 into 10 इट विल टेक 20 मिनट्स टू बर्न? नहीं, इट विल टेक बस ਹੁਣ भी बच्चे 2-3 मिनट ही लगेंगे। नो डाउट 2 तो ज्यादा ही लगेंगे, बट 3-4 मिनट से सारे बर्न हो जाएंगे, क्योंकि जो एक बार अग लग गई वो इतनी ज्यादा फैलेगी कि वो फटाफट सबनू बर्न कर देगी। यानी कि जो रेट है वो जिवें मैं क्वांटिटी इंक्रीज करती ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड विद द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। सो ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ बैक टू +1 जाने हैं। ਆਪਾਂ एक फॉर्म करते सीगे लॉ ऑफ मास एक्शन। इफ यू रिमेंबर, अगर तुहानू याद होवे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की कहना सीगा बच्चे कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मैं हुणे सारियां फॉर्म्स इस दियां रिवाइज कराऊंगा सानू, क्योंकि +2 दे विच भी हैगा ही आपां नू। तुसी क्योंकि थोड़े नोट्स दे विच बिल्कुल शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, तुसी मेरे नाल नाल अपने शॉर्ट नोट्स बनाई चलियो। द लॉ ऑफ मास एक्शन एक की कहंदा सी बच्चे, जो दी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दैट इज कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। जिन्ना तुसी रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे उन्ना रिएक्शन दा रेट की होएगा ज्यादा। लेट इट बी कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए जो कि बी दे रहा है, ठीक है, विद टाइम। तो मेरे को रेट किस दे बराबर हो गया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और अगर तुझे याद हो फिर अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया सी स्मॉल के। स्मॉल के नो अपन कहते सी रेट कांस्टेंट। सो दिस इंप्लाइज रेट इज इक्वल टू के इनटू ए। आप रेट कांस्टेंट ते दोबारा आवांगे कि रेट कांस्टेंट की हुंदा है, बट फिलहाल आप रेट पे रहो। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या है? ठीक है। सो ये अपनी फर्स्ट फॉर्म है। नोटेड बच्चे? नाउ मैं इसी दे विच चेंज करूंगा, तुसी अपना अलग तो नोट करी चलो। हुण मैं सेकंड फॉर्म ते आ रहे हैं। अगर मेरे को एक तो ज्यादा रिएक्टेंट्स है, सो हुण मैं रिएक्शन नु चेंज करके करता A plus B gives you C plus D। हुन रेट की सीगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। सो A दी कॉन्सेंट्रेशन इंटू B दी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। सो ये अपना सेकेंड टर्म होगी, ठीक है ना, कि अगर रिएक्टेंट्स एक तो ज्यादा है। हम थर्ड केस, अगर रिएक्टेंट्स दे अगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे हैं। सो थर्ड, अगर इट इज 2A plus 3B gives you C plus 2D, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे हैं, the rate is directly proportional to A the power उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, B the power
उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो रेट 2 एंड 3 इथे डन। सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यदि कंप्लीट डेफिनेशन की बनी कि rate of any chemical reaction is directly proportional to the products of the molar concentrations of all the reactants, with each concentration term raised to the power its stoichiometric coefficient. Getting a point, bache? So completely it is defined as the rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of the reactants, with each concentration term raised to the power its stoichiometric coefficient. So this is what you mean by law of mass action. बच्चे अपन law of mass action दोबारा भी करांगे एक दो दिनों तक, ठीक है? But before that अपन इथे की कर लिया, ਹੁਣ देखो जिन्ना तुसी A ਨੂੰ ज्यादा ਲਓਗੇ उन्ना ही rate of reaction ज्यादा होएगा. So our first factor is कि rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. ਹੁਣ सेकंड पॉइंट ਤੇ ਆਓ ਬੱਚੇ, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 kg ਵੁੱਡ ਲੈ ਲਈ ਐਂਡ 2 kg ਹੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਤਾ। लेट इट ना ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ both will burn in equal time? ਨਹੀਂ, both will take different amount of time, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੁਡਨ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵੁੱਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਰਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੁੱਡ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। सो मैं दो बिल्कुल सेम रिएक्शंस ले रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बिल्कुल डिट्टो मिलती जुलती रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, देखो सिर्फ कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है, बाकी सब कुछ डिट्टो। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇਨਟੂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇਨਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1/2। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬੋਲਦੇ हैं ना। सो देखो सेम है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जी एक्सप्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन दी रेट दी एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डिट्टो है। हुण मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, लेट इट बी मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ले ली। कार्बन मोनोऑक्साइड 100 मोल्स, ਇਹਦੇ भी 100 मोल्स, CO2 ਤਾਂ ਹਲੇ 0 ਹੀ ਹੈ, इसदे भी 100 मोल्स, इसदे भी 100 मोल्स, NO2 हले 0 ही है, तो सब कुछ सेम है बच्चे। सो देखो मैं ਇੱਥੇ भी 100 पुट करूंगा, ਇੱਥੇ भी 100, ਇੱਥੇ भी 100 पुट करूंगा, ਇੱਥੇ भी 100, बट ਜਦੋਂ मैं रेट चेक करूंगा ਇਹਦਾ रेट घट आऊगा, ਇਹਦਾ रेट ज्यादा होगा। क्यों? सब कुछ सेम है, एक्सप्रेशन भी सेम है, कॉन्सेंट्रेशंस भी सेम है। सो सेम की नहीं हैगा बच्चे? K, which is called rate constant and depends upon nature of the reactants। ਇਹਦਾ K घट होएगा, सो रेट घट आएगा, क्योंकि देखो बाकी टर्म्स तो सेम ही है ना बच्चे, फॉर्मूला सेम है। 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ K ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ K ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ K ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स ਦੇ ਉੱਪਰ भी रेट डिपेंड करता है। You getting my point? So this is our second factor. And now we move on to the third factor, which is called temperature. So बच्चे
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਪੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ 110, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ 150, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਵਾਟਰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 150। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਸਮਝਾਂਗੇ। फर्स्ट पार्ट कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो बिल्कुल मोटा मोटा जा हिसाब है ना, कि टेम्परेचर ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ, ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਗਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ rate at T plus 10 degree upon rate at T degree। वैसे ਆਪਾਂ चलो स्मॉल t लिख लेते हैं क्योंकि ਆਪਾਂ डिग्रीज यूज कर रहे हैं। This is approximately equal to 2। मतलब इतना मैं की कहना चाह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट अगर तुसी 10 डिग्री टेंपरेचर बढ़ा दो तो लगभग ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। सो विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेंपरेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। अगेन मैं वर्ड यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। So क्वेश्चन आता है कि what do you mean by temperature coefficient? तो अपना आंसर is the rate of any chemical reaction becomes almost double with each 10 degree rise in temperature. This is called temperature coefficient, ठीक है। Like for example, अगर मैं सुनूं कमा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी रिएक्शन का रेट सीगा let it be 4, तो दसो 60 डिग्री ते कितना होएगा? 20 डिग्री ते 4 सी, तो दसो 60 डिग्री ते कितना होएगा? सो देखो तुसी की लिखोगे 30 डिग्री ते कितना हो गया बच्चे? 8। 10 डिग्री तुसी 10 डिग्री होर बढ़ाया, 40 डिग्री ते कितना हो गया? 16। 50 डिग्री ते अगेन डबल 32 एंड 60 डिग्री ते अगेन डबल यानी कि 64। You getting a point? So the rate of a chemical reaction will almost become double with each 10 degree rise in temperature. This is called temperature coefficient। हुन मैं बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। सो देखो now if your question is कि सर एवं नहीं, मतलब we don't want any approximation, सानू बिल्कुल एग्जैक्ट दसो, है ना, तो एग्जैक्ट की आएगा। सो देखो बच्चे पहला तो सानू ये भी पता होना चाहिए कि ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ फैक्टर चेंज होएगा। देखो कोई भी रिएक्शन है, सो लेट इट बी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, CO plus half O2 gives you CO2, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਰੇਟ is equal to K into CO into O2 ਦੀ ਪਾਵਰ हाफ, लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज मैं ये भी 100 लगता है, ये भी 100 लगता है, ठीक है। एक रिएक्शन में कैरी कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे, है ना। तो ऑफ कोर्स की चेंज हो रहा है बच्चे, हाई टेम्परेचर पे के चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो मैं सेम ही रखी है। ये करेगा पॉइंट। मैं ए भी 100 मोल्स लेते, ए भी 100 मोल्स लेते, दो अलग अलग सैंपल्स, दो अलग अलग बीकर्स। एक बीकर च मैं टेम्परेचर मेंटेन किया लेट इट बी 20, एक च मेंटेन किया 30, तो आ चीज तो सेम ही है ना। सो 30 वाले दा रेट क्यों ज्यादा होएगा? क्योंकि के इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। गेटिंग अ पॉइंट। वापस जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम +1 जो आप करते सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, याद है एक लाइन में सानू बहुत चंगी तरह लर्न करवाई सी कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अपन ने क्या सी कि रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट
which depends upon the nature of the reactants। देखो रिएक्शन के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट एक्सटर्नली किहड़े फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे। तो हुण आपां ओह कर रहे हैं, देखो सो विथ टेंपरेचर ये किवें चेंज होएगा। सो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आपां ने करनी है हले इक्वेशन, ठीक है। मैं जस्ट सुनो फैक्टर्स एक्सप्लेन करते करते दस रहे हैं। सो देखो log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इसनू बच्चे आपां कहने हैं आर्हेनियस इक्वेशन। K1 की है, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। K1 ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਟ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1। K2 ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ K2। R ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ EA ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ EA ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ T1 ਤੋਂ T2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ K1 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ K2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰहेनियस ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਡਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਕੈਟਲਿਸਟ। So the next factor is बच्चे catalyst। So catalyst ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ which increases ਜਾਂ decreases the rate of a chemical reaction without itself being consumed, however it may participate in the reaction, ठीक है ना। या आप कहना कि however it may form temporary bonds with the reactants या products। so 3 parts है definition ਦੇ कि catalyst एक ऐसा substance है जो reaction ਦੇ rate ਨੂੰ change ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ यूज नहीं ਹੁੰਦਾ, ठीक है, but ਉਹ reaction ਦੇ ਵਿੱਚ participate ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, temporarily participate ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ reaction ਦੀ speed ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ positive catalyst, अगर घटाएगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट। सो याद होएगा जो आपने सरफेस केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन किया सी, तो मैं तुहानू कहा सीगा एक ग्राफ मैं तुहानू छुड़वाया सी, तो ग्राफ आप इत्थे करांगे, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कर लिया सी, एडसॉर्प्शन थ्योरी याद है ना। आपने कहा सी कि जिहड़े रिएक्टेंट्स ने वो कैटलिस्ट के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे ते एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हीट रिलीज होएगी। तो जिहड़ी ਉਹ हीट रिलीज होएगी that will be used to break the old bonds in the reactants and form new bonds in the products, ठीक है ना। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ mechanism of action of catalyst करना है according to chemical kinetics, ठीक है ना। so एक catalyst है ਜਿਹੜਾ ਕਿ reaction ਦੇ rate ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। next is surface area। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ rate of reaction is directly proportional to the surface area। like for example ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ beaker ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ml वाटर है, ਹੁਣ ਇਹੀ 100 ml वाटर मैं एक frying pan ਚ ਲੈ ਲਿਆ, same 100 ml मैं दोनों ਨੂੰ हीट अप कर रहे हैं फ्लेम ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, पैन वाला, बिकॉज द सरफेस एरिया इज मोर, है ना। another example, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਹੈਲ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਨੂੰ रदा मार के बूर च कन्वर्ट करता, फूस च कन्वर्ट करता, तुसी उसनू जस्ट मैचस्टिक दियो, इट विल बर्न विद इन सेकेंड्स,
ठीक है ना, पूरा का पूरा विद इन सेकेंड्स मच जूगा बच्चे, बिकॉज द सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स, है ना। एक एडा क अगर वुडन लॉग तुसी लाओगे तो पूरा रूम भर जूगा बूर दे नाल तां, ठीक है ना। सो सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड. Last factor upon which the rate depends is radiation. So बच्चे कई reactions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ radiation ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ reactant ਦੀ concentration temperature ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ +1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, methane plus chlorine gives you methyl chloride plus HCl. So हाँ जी, एरो के ऊपर आप लिखते सी सनलाइट और यूवी लाइट, ठीक है बच्चे. नाउ हुण जिहड़ी ये रिएक्शन है तुसीं इहदे विच सनलाइट या यूवी लाइट ना पाओ. आप कीता ना मैकेनिज्म +1 फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन. ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ. ਤਾਂ ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਹੋਮੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਜੇ ਸਨਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ. ਸੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮੋਲਸ ਲੈ ਲਓ, 200 ਮੋਲਸ ਕਰ ਦੋ, 1000 ਮੋਲਸ ਕਰ ਦੋ, 10000 ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ they take place only under the influence of a particular radiation. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਫੇਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਿਗਣੀ ਕਰ ਦੋ, ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਥੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਗ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. The reaction will not occur in the absence of sunlight. So this is the effect of radiation. So these are the various factors upon which the rate of a chemical reaction depends. So bache, I think this is enough for today. So आज अपने basic definition की थी है कि what do you mean by rate, what do you mean by average rate, what do you mean by instantaneous rate. Then we have done factors affecting the rates of chemical reactions. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਫਰਦਰ ਟੌਪਿਕਸ. ਫਾਈਨ. So till then, keep studying, keep revising. Thanks a lot.